Praise the Lord, grace and peace be upon you, dear family. We welcome you to hosting the Ark Day 42. Today we continue the journey of the Ark of the Covenant and come to the house of Abinadab at Kirjath Jearim. Our main scripture is 1 Samuel chapter 7. The people brought the Ark into the Abinadab's house, and his son Eleazar was consecrated to keep it, and the Ark remained there for 20 years. प्रिय परिवार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। आज होस्टिंग दी आर्क डे 42 में हम वाचा के संदूक की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किर्यत यारीम में अबीनादाब के घर में आते हैं। हमारा मुख्य शास्त्र है शमूएल 7। लोग वाचा के संदूक को अबीनादाब के घर में लेकर आए और उसके पुत्र एलियाजर को उसकी रखवाली करने के लिए पवित्र किया गया और संदूक वहां 20 वर्षों तक रहा। The first lesson is simple but powerful. The ark found a house. God's presence was not only for public gatherings, the ark entered a home. Abinadab's house became a place entrusted with something sacred. 1 Corinthians 4:2 says, "It is required in stewards that one be found faithful." Hosting God's presence means more than experiencing His presence. It means being faithful with what God has entrusted to us, our families, callings, our children, and our spiritual responsibility. पहली सीख सरल लेकिन शक्तिशाली है। वाचा के संदूक को एक घर मिला। परमेश्वर की उपस्थिति केवल सार्वजनिक सभाओं के लिए नहीं थी। संदूक एक घर में आया। अबीनादाब का घर एक ऐसी जगह बन गया जिसे परमेश्वर ने एक पवित्र जिम्मेदारी सौंपी। पहला कुरिन्थियों 4:2 कहता है, भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर की उपस्थिति की मेजबानी केवल उसकी उपस्थिति को अनुभव करना नहीं है, ये उन चीजों के प्रति विश्वास योग्य होना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। हमारे परिवार के लिए जो बुलाहट है, हमारे बच्चों, हमारे आत्मिक जिम्मेदारियां हैं। The second lesson is about the 20 years. 20 years is a long hidden season. The ark was there, but there was no constant public movement. This teaches us that the hiddenness does not mean absence. You may be praying and not seeing the answer. You may be serving and nobody recognizes you. You may be preparing, but the door has not been opened. Do not despise, friends, your hidden season. The ark remained there for 20 years, but God's purpose was still moving forward. दूसरी सीख इन 20 वर्षों से मिलती है। 20 वर्ष एक बहुत लंबा छिपा हुआ समय है। संदूक वहां था, लेकिन लगातार कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं थी। इससे हमें सीख मिलती है, छिपा हुआ होना, अनुपस्थिति होना नहीं है। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर दिखाई न दे। हो सकता है आप सेवा कर रहे हैं लेकिन कोई आपको पहचान न रहा है। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक द्वार ना खुला हो। अपने छिपे हुए समय को तुच्छ मत समझिए। संदूक 20 वर्षों तक वही रहा, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य आगे बढ़ता रहा। And there is another powerful truth. Abinadab's house was ordinary, but God entrusted it with something extraordinary. 2 Corinthians 4:7 says, "We have this treasure in earthen vessels." The vessels may be ordinary, but the treasure is extraordinary. Your home may be ordinary, your family may be ordinary, your city may be small, but when God entrusts His presence to you, He can make your ordinary place significant. और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सत्य है। अबीनादाब का घर साधारण था, लेकिन परमेश्वर ने उसे असाधारण जिम्मेदारी सौंपी। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 कहता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। पात्र साधारण हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का खजाना असाधारण है। आपका घर साधारण हो सकता है, आपका परिवार साधारण हो सकता है, आपका शहर छोटा हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपको सौंपता है तो वो आपके साधारण स्थान को भी असाधारण उद्देश्य का स्थान बना सकता है। Finally, hosting the ark required consecration. Eleazar was consecrated to keep it. Psalm number 24:3-4 speaks about clean hands and pure heart. So hosting God's presence requires holiness, obedience, reverence and faithfulness. अंत में वाचा के संदूक की मेजबानी के लिए पवित्रीकरण आवश्यक था। एलियाजर को संदूक की रखवाली करने के लिए पवित्र किया गया। भजन संहिता 24:3-4 शुभ हाथों
और निर्मल हृदय की बात करता है। इसलिए भविष्य की उपस्थिति की मेजबानी के लिए पवित्रता, आज्ञाकारिता, आदर और विश्वास योग्यता आवश्यक है। Dear family of God, remember your hidden season is not a wasted season. God can use an ordinary house to carry an extraordinary purpose. Guard what He has entrusted to you. Remain faithful and continue to host His presence. प्रिय परिवार, याद रखिए, आपका छिपा हुआ समय व्यर्थ समय नहीं है। परमेश्वर एक साधारण घर के द्वारा असाधारण उद्देश्य पूरा कर सकता है। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसकी विश्वास योग्यता से रखवाली कीजिए और उसकी उपस्थिति की मेजबानी करते रहिए। Grace and peace be upon all of you. परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह शांति दे।